Ok, it's been quite a long time. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de French Friday and today I'm going to share some of the French desserts that you just cannot miss when you are in France because France ka main food is dessert. Even though you don't eat the main food, starters or anything, you just jump into the dessert. It's totally fine because it's France. Okay, so when I was in France, I tried quite a lot of desserts and ये हर जगह मिल जाएंगे. Like you don't need to particularly go to the Boulangerie, which is bakery. You can even go to Carrefour or any other express market and still get good dessert. So without any further ado, allons-y, shall we? I have my morning tea because it's quite early in the morning. 7:35 a.m. to be precise because I have a whole day of अच्छा खासा बहुत सारा काम, so that is how I could squeeze in one video shooting. So that is what I'm doing. So without any further ado, allons-y, shall we? So number one is Flan, Flan, and I'll insert the pictures of every dessert I talk about. So Flan is my number one dessert because I tried this during the lockdown period. वो खाते ही I had this nostalgia क्योंकि मेरी मम्मी जब कस्टर्ड बनाती है taste exactly the same. बस the only difference is फ्लान के ऊपर एक पतली सी जेल kind of layer होती है which is I suppose egg protein, I'm not sure. तो वो जेल काइंड ऑफ लेयर होती है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. कभी कभी ये फ्लान टार्ट के साथ मिलता है, मतलब टार्ट के अंदर यू हैव द फ्लान. सो दैट इज़ नंबर वन. Number two is tiramisu. Although I'm not a fan of tiramisu because it's entirely dark chocolate and अब मुझे dark chocolate पसंद आती है. But tiramisu is basically coffee and dark chocolate and there are various flavors of tiramisu, so you can try that. Next one is I've actually made a whole list because there are so many desserts और वो बात अलग है, किसी भी डेजर्ट का मुकाबला पनीर जलेबी से नहीं हो सकता, विच आई एब्सोल्युटली लव. वो भी देसी घी वाली, आई जस्ट लव इट. मैंने रिसेंटली दिवाली के टाइम पे खाई थी और मैंने बहुत ज़्यादा खा ली थी, तो आई हैड टू गो आउट एंड बर्न सम कैलोरीज. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो नेक्स्ट वन इज क्रेम ब्रूले विच इज़ burnt cream and I tasted this in Paris because मेरे को बस टेस्ट करना था कि ये कैसी होती है. So this is actually like smoked coffee or butterscotch kind of flavor, but it was very good because इसका texture बहुत addictive था, तो I really liked it. Okay, next one, like apart from all the amazing stuff the Boulangerie has, the French Boulangerie has, like the baguette part, I could not understand the whole baguette part because there are so many kinds of baguette. Baguette is pain, which is bread in France, and there are so many different kinds of baguette. Like if you want to consume the same day, तो उसके लिए you get to get another baguette, और अगर 2 दिन के बाद लेनी है तब उसके लिए दूसरी baguette लेनी चाहिए. बहुत सारे kinds of baguette होते हैं. And honestly, my review, all the baguettes I tasted were quite dry. बहुत ज़्यादा dry, मतलब उसको खींच के चबाना पड़ता था जैसे पता नहीं क्या ही chew कर रहे हो. One disclaimer, it can also spoil the roof of your mouth, so taste it on your own risk. I know baguette is like the most French thing. Honestly, I barely ever went to the boulangerie to get baguette. I always went for something else. So next one is pain au raisin. And if you have been following me from some time over Instagram या YouTube पे, you would know that I loved pain au raisin. और ये सबको नहीं पसंद आता क्योंकि थोड़ा सा ना, कैसे बताऊँ, गिलगिला सा फ्लेवर भी होता है, बट आई काइंड ऑफ लाइक इट. बहुत ही मतलब ब्रेड के अंदर यू हैव द लिटिल बिट ऑफ क्रीम एंड रेजन्स, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है. एंड रिसेंटली देयर वाज दिस गर्ल हु टैग्ड मी इन हर स्टोरीज ट्राइंग pain au raisin. I was like, I'm not the only one with weird taste, right? So that is that, pain au raisin. And then pain is basically bread, French bread. And French people are amazing at making their bread. So when you are in France, just don't count your calories and try some desserts, which brings me to the next dessert, which is pain au chocolat, which is the chocolate bread. वो यहाँ पे भी मिलती है एम्बेसी में या इधर उधर बेकरीज में मिल जाएगी, but nothing like the French pain au chocolat. So if you want to have the closer taste, इंडिया में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए, जो थोड़ा फ्रेंच टेस्ट से भी सिमिलर हो, which is Paul. I'll leave some of the names in the description box. Do check it out. Okay, so after pain au chocolat, you have pain au beurre, like simple butter wali bread. And the
main secret ingredient I think they use is a lot of butter, which makes their breads and pastries so creamy and soft, and it's just amazing. You have to try all these. Next one is croissant au beurre. तो croissant au beurre और pain au beurre इन दोनों का लगभग सेम टेस्ट होता है. द ओनली डिफरेंस इज थोड़ी सी शेप डिफरेंट होती है. क्रोसॉ की इज टिपिकल क्रोसॉ शेप, एंड क्रोसॉ ओ शोकोला भी अच्छा होता है, एंड बर इज लाइक क्लासिक. सो मोस्टली व्हाट फ्रेंच पीपल डू, दे विल गो आउट टू द टेरेस एरिया, नॉट द छत वाला टेरेस, जो आउटसाइड सेटिंग होती है, दैट इज व्हाट दे कॉल टेरेस. तो वो वहाँ पे बैठते हैं, दे विल बम स्मोक, एंड साथ में बैठ के दे विल हैव ब्लैक कॉफ़ी with croissant or beurre. That is classic French. If you really just want to take in the French vibe, try this, except the smoke part. Try this with black coffee, like the café they call, and croissant or beurre. Classic French. बड़ी अच्छी vibe आती है, बड़ी अच्छी. Next one is millefeuille. Okay, this dessert is something I never got to try. Although ये हर जगह मिलता था और मेरा मन भी करता था, बट इसके ना 3-3 के सेट मिलते थे, सिंगल नहीं मिलता था मोस्टली, तो मैंने कभी लिया नहीं. आई नेवर गॉट टू ट्राई दिस, बट इफ यू हैपन टू ट्राई दिस और इफ यू हैव ट्राइड दिस, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एक्सप्लेनिंग द टेस्ट, कि वो कैसा टेस्ट होता है इन योर लेमन लैंग्वेज, इन योर लेमन वर्ड्स, मे बी यूजिंग सम इंडियन रेफरेंसेज. लाइक मैंने जब फ्लां खाया था, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक कस्टर्ड. तो बताना if you have already tried. Next one are a few tarts. Actually there are so many tarts and I can only cover a few desserts in this video because I have not had a lot of them. और मैं एक ही रिपीटेडली ज़्यादा खाती थी, विच इज़ पैन और रेज़ा. तो मैंने इतने भी डेजर्ट्स ट्राई नहीं करे, बट जितने करे आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ टार्ट ओ सिट्रॉन. ये मैंने ट्राई किया है. टार्ट ओ फ्रॉम्बोise, टार्ट ओ फ्रेज. सो I'll explain. Tarte au citron is lemon tart. बहुत ज़्यादा शुगरी था मेरे टेस्ट के हिसाब से, सो आई डेंट क्वाइट लाइक इट. मेरे ख्याल से वो यहाँ पे भी अगर मैं खाऊंगी आई वॉन्ट लाइक इट, क्योंकि टार्ट्स आर नॉट रियली माई टेस्ट. बट इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ यू विल लव. कंसिस्टेंसी वगैरह बहुत अच्छी होती है फ्रेंच बेकरी. ओके, नेक्स्ट वन टार्ट ओ फ्रॉम्बोise. फ्रॉम्बोise इज रेस्पबेरी. सो रेस्पबेरी के साथ ना दे ऑल्सो एड सम शुगर सिरप, विच आई डोंट रियली लाइक इट. मेरे को फ्रूट का फ्रूटी फ्लेवर ही अच्छा लगता है. द नेक्स्ट वन इज टार्ट ओ फ्रेज, विच इज स्ट्रॉबेरी टार्ट. उसमें भी थोड़ी सी, जिसपे शुगर सिरप अलग से डलता हुआ दिख जाता है या ऊपर से मेरे को प्रेजेंट होता हुआ दिखता है, आई डोंट रियली ट्राई इट बिकॉज उसमें उस चीज़ का नेचुरल टेस्ट मुझे नहीं आता. आई नो दिस इज़ क्वाइट वियर्ड, क्योंकि बाकी सब डेजर्ट्स में सब में शुगर कुछ ना कुछ होती है, तो बट दिस इज समथिंग आई डोंट रियली लाइक. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्लेयर, एंड आई नेवर ट्राइड दिस, बट I can imagine the taste in my mouth. And also the desserts are not really that expensive. Like you get a basic dessert like pain or raisin from a good bakery. You get it for maximum €2. It starts from €1 to €2 depending upon कि कौन सी bakery है, like which boulangerie you are going to. अगर वो बाहर है then it will be a little expensive. अगर वो थोड़ा सा अंदर जाके है lanes में या mall के अंदर, then it will be cheaper. And my tip would be, what I used to do was I would go to the Carrefour. जब मैं grocery shopping करने जाती थी, there was this bakery section, Viennoiserie बोलते हैं basically, जहाँ पे breads और ये सब पड़ी होती हैं. तो वहाँ पे जाके I would just grab one mixture box जिसके अंदर छोटे छोटे pain au raisin, pain au beurre, pain au chocolat, इन तीनों का combination होता था बहुत छोटे छोटे, और वो 3 दिन चल जाते थे. तो मेरे लिए वो ठीक था, और उस पर सेल भी लगी होती. तो I used to get that, which used to cost me €2.30, like €2.30. So you can try that. And Carrefour is not a bad place to try some French pastry. Like if you are trying something for the first time, I would suggest go to the Carrefour or Express Market. Express थोड़ी सी expensive होती है, so go to Carrefour. वहाँ पे एक सैम्पल वाले भी you can buy, और बेकरी में भी you can buy, but Carrefour में थोड़े सस्ते मिलते हैं, और यू गेट द लिटिल बिट ऑफ टेस्ट कि अच्छा होगा कैसा. एंड देन इफ यू लाइक Carrefour वाला वर्जन ऑफ दैट पेस्ट्री और ब्रेड or whatever you are trying, you will definitely love the bakery version, like the original version. So that is what I suggest you do. Okay, next one, croissant aux amandes, which is basically almond croissant. तो ये दिखने में भी बड़ा टेम्पटिंग लगता था. इट हैज़ लाइक almond flakes over it, तो टेस्ट बाकी सारा वही होता है, with some dry sugar over it, जो क्या बोलते हैं, शुगर स्प्रिंकल कर देते हैं ऐसे छन्नी के साथ. So that is another croissant that you can try.
अनदर वन इज ब्रियोश. तो ब्रियोश के 3-4 टाइप जो मैंने देखे हैं और 1-2 मैंने ट्राई करे हैं. तो ब्रियोश इज लाइक छोटी सी गोल सी ब्रेड. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रियोश. नंबर 1 इज ब्रियोश नेचुरल विच इज द बेसिक ब्रियोश. वन इज ब्रियोश ओ सुक्र. उसमें क्या होता है, छोटे छोटे शुगर पर्ल्स होते हैं, लाइक छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं. तो वो वाला मैंने ट्राई किया एंड आई लाइक्ड इट. इसके अलावा होता है ब्रियोश ओ शोको. ब्रियोश ओ शोको चॉकलेट वाला ब्रियोश. तो उसमें अंदर छोटे छोटे, या तो ऊपर छोटे छोटे चोको चिप्स होते हैं या उसके अंदर चॉकलेट होती है. तो ब्रियोश इज समथिंग आई कैन ट्राई, बट वो कभी भी सिंगल आसानी से नहीं मिलती थी मेरे को. तो मेरे को पूरा बॉक्स के चक्कर में ये मैंने कभी इतने ज़्यादा नहीं खाए. अगर वो मेरे को मिक्स वाले बॉक्स में मिल रही है देन डेफिनेटली आई वुड टेक दैट होम. नेक्स्ट वन इज मैडलिन. I cannot really explain the flavor of Madeleine. मतलब what I used to do was I would go to the Carrefour और मेरे को आसपास के जो लोग होते थे ना, मैं कुछ नई चीज़ लेने से पहले उनसे पूछती थी कि भैया तुम्हें ये चीज़ पसंद है. तो मेरे को एक बंदे ने बोला कि हाँ ही लाइक्स इट और उसका ये फेवरेट है, एंड आई ट्राइड इट. तो मेरे को था प्रॉबेबली उसका टेस्ट ना उसी के पास रहने देना चाहिए. तो मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे थे. इट काइंड ऑफ टेस्टेड लाइक फ्रूट केक विदाउट एनी चेरीज इन इट और थोड़ा सा स्टिकी. तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था. नेक्स्ट वन इज गोफ्र. दिस इज समथिंग आई रियली लाइक्ड और ये मैं बॉन मामो ब्रांड का खा के. बॉन मामो इज अ वेरी फेमस एंड गुड क्वालिटी ब्रांड इन फ्रांस. इफ यू एवर विश टू ट्राई समथिंग लाइक जैम, कॉन्फिट्यूर, गोफ्र, ये सारी कुछ भी चीज़ें ऐसी खानी है, ट्राई करनी है, ट्राई द बॉन मामो ब्रांड. एंड जैम तो इसकी बहुत अच्छी होती है. इट हैज़ छोटे छोटे, अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर ब्लूबेरी जैम लाइक कॉन्फिट्यूर ओ मिर्तेल और कॉन्फिट्यूर ओ फ्राम्बोइज, यू हैव लिटिल पीसेज ऑफ फ्रूट इनसाइड द जैम. दैट इज़ व्हाट आई लाइक, क्योंकि मेरे को ओरिजिनलिटी मिल जाती है. एंड आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस ब्रांड बाय माई super special friend when I went to Paris back in 2017. She introduced me to this brand Bon Mamo. So मुझे सुबह सुबह पूरा breakfast ready करके दिया था, like with the baguette and jam and everything. तो मेरे को वहाँ से उसके बारे में पता चला था. एंड यहाँ पे भी मिलता है इन सम प्लेसेस. प्रॉबेबली खान मार्केट इज़ द प्लेस जहाँ पे बहुत इजीली ये सब चीज़ें मिल जाती हैं. बॉन मामो के गोफ्र ज़रूर खाना, दे आर अमेजिंग. और ये मैंने बहुत खाए थे लॉकडाउन के टाइम, जो उस टाइम नहीं दिखा बट मुझे बाद में बहुत रियलाइज़ हुआ दैट मेरा स्टैमिना बहुत डाउन हो गया है. तो ये फ्रांस में बहुत ज़्यादा फील होगा बिकॉज यू विल एंड अप ईटिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स देन यू प्लान्ड. So don't be too harsh on yourself when you are in France. Just indulge in the boulangerie vibe. Okay, next one is macaron. This is a must when you're going to France. I don't know कि इसकी हर सिटी में ब्रांच है या नहीं, which is पियर एयर में. मैंने पेरिस में हमेशा पियर एयर में पे जाके मैकरोन खाया एंड दे आर अमेजिंग. एंड माई प्रेफर्ड फ्लेवर इज वैनिला द मेडागास्कर, जो कि मैंने पेरिस के व्लॉग में भी बहुत बारी बताया. एंड आई इवन गॉट माई फ्रेंड टू टेस्ट दिस वैनिला मेडागास्कर. आई फॉरगॉट टू ड्रिंक माई टी. यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ मैकरोन ऑप्शंस, लाइक जितने फ्लेवर यू कैन इमेजिन ना वो सब मिलते हैं. एंड पहले लाइक देर आर सो मेनी ब्रांड फॉर मैकरोन एंड मैंने दूसरी जगह का भी मैकरोन खाया, मुझे नहीं अच्छे लगे. तो माई चॉइस इज पियर एयर में एनी डे. नेक्स्ट वन वुड बी ला ड्यूरे. मैंने कभी वहाँ के ट्राई नहीं करे बट पीपल रियली गो टू दैट प्लेस फॉर मैकरोन एंड सम कैफे. आफ्टर मैकरोन you have saucisson au pomme, which is basically an apple pastry. It was good for a change, like मैं हमेशा पैओ रेजा खाती थी. देन आई ट्राइड saucisson au pomme. उसके भी छोटे छोटे पैक्स ट्राई करती थी क्योंकि मेरे को लगता था भाई इतनी बड़ी पेस्ट्री लेके ना मेरे से खाई जाएगी नहीं, फिर फेंकनी पड़ेगी. तो मैं छोटे छोटे पीसेस ट्राई करती. नॉट द बेस्ट बट गुड. आई थिंक यू गेट इट. ओके, या दैट्स इट for all my desert recommendations for this video. And probably when I visit France next time, I will try something new. Probably meal fai, जो कि मेरे को करना था try, but I never got to try. And if you have tasted anything different than all these things, और इनमें से भी कुछ अगर try किया है, share your experience in the comment section below. I would love to read कि मतलब कैसा टेस्ट लगा. एंड ऑनेस्टली इफ़ यू लुक क्लोजली, बुलॉन्जरी जितनी भी फ्रेंच बुलॉन्जरीज होती हैं, इनका एस्थेटिक देखे कितना ज़्यादा अच्छा होता है. मतलब व्हेन यू एंटर द बुलॉन्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम ना, यू विल फील लाइक यू आर एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट एरा. तो बुलॉन्जरी इज, you know, it gives you the French vibe. So
do go to the Boulangerie, do check out every Boulangerie जितनी you can. I have checked out a few और जिनके मैं नाम भूल चुकी हूँ क्योंकि मैं every second day Boulangerie में मिलती थी. और actually French people have this habit, वो every morning सुबह 8 बजे या 7 बजे उठ के Boulangerie चले जाएंगे just to have cafe and confiture and jam कह रही हूँ, confiture and baguette in the morning before even brushing their teeth. That is what they do. Like most people. सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना. आशा का सोगू. उस दिन मैं ड्राइव करते करते अपने आप से ये जब सेंटेंस बोल रही थी, आशा का सोगू, मतलब देयर वाज दिस पर्सन हु वाज ड्राइविंग लाइक क्रेजी. तो मैंने कहा भैया इसको पसंद होएगी ऐसी ड्राइव करना, पता नहीं क्या कर रहा है. तो आई वाज लाइक आशा का सोगू. फिर थोड़ा सा हिंदी दिमाग अब यहाँ आगे चलता है ना, फ्रेंच और हिंदी का. मैंने कहा ले गू तो कुछ और ही होता है. तो सबका अपना अपना गू होता है. आई डोंट नो, ये चीज़ मैं फ्रांस में नहीं करती थी, बट अब यहाँ पे आई एम लाइक ऑल द टाइम इनटू दिस हिंदी एनवायरनमेंट और मेरे दिमाग के अंदर ही फ्रेंच होती है. तो आई डू ऑल दीज comparisons which are quite hilarious in my opinion. So let me know what was your experience trying any French dessert if you have. If you like this video, you know what to do. Like, share, comment, subscribe and bell button जरूर दबाना. And I'll see you next time. Till then, you know what to do. Reve bouscule et explore. And I'll see you on Tuesday with a new vlog. And I have a lot to share with you guys. बाद में बताऊंगी. Okay, चलो, bye bye.